हेलो गाइस, वेलकम टू मेका स्मिथ यूट्यूब चैनल। ये जो आपका लेट प्लेसमेंट हुआ, इस पे आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड? Nowadays, companies are also focusing for equal opportunity for both men and women. So, Gandhi bhaiya, hi. Hi Nitish. So, where did you got placed? I got placed in a semiconductor company in Bangalore. Okay, so what is the role? My role is supply chain trainee role. Okay, so you are from mechatronics, right? Yeah. So you have opted for supply chain. Can you like explain the reason behind it? Yeah, actually I am currently interested in both mechatronics core role and also techno managerial roles also. And this suited my job description very well. So this job description suited me very well, and even I had done internships in supply chain trainee role only. So that's why I got this chance and I had taken that. And, what is your future plan? Yeah, Nitish. So my future plan is like since I got placed in supply chain role, Okay. I'll be doing for 2 years minimum, and I will be getting the work experience. And based on that, I am thinking of doing an executive MBA so that I can get the managerial positions. Okay, so in from future. that you can get like big industries like in management Hmm. position. Okay. Yeah, even in automobile industry, I would like to see. Since supply chain will be there in every major industry, right? So I can apply for that. Okay, nice. Hmm. आयुष जी, आपका ये सेकंड ईयर है, ये खत्म होने को है, तो आपका एकेडमिक्स एनआईटी के कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। प्लेसमेंट का ये कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छी है, Okay. बहुत वाइब्रेंट है, रीच है, सबको पता है। और मेरी ब्रांच डिज़ाइन है, Okay. तो डिज़ाइन में प्लेसमेंट अभी 20 आउट ऑफ 22 प्लेस हो चुके हैं, ओके, नाइस। विद एवरेज पैकेज मोर देन 10 है, 10 LPA। और मेरी प्लेसमेंट की बात करें तो मेरा एक एरोस्पेस डिवीजन कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, Okay. बेंगलोर बेस्ड, और पैकेज है 16 to 20 के बीच में। और बाकियों का प्लेसमेंट एरोस्पेस में कैसा प्लेसमेंट हुआ, किस सेगमेंट में? मोस्टली 10 to 15 लोग एरोस्पेस डिवीजन में हुए, बाकी बचे हुए लोग ऑटोमोबाइल कंपनी में हुए, और जिनकी इच्छा थी नॉनकोर में जाने की तो नॉनकोर में भी एक दो लोग प्लेस हुए। सो भैया, आपकी तो एक बहुत रिनाउंड कंपनी एरोस्पेस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो आप जूनियर्स को क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए प्लेसमेंट की? अब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए ये है कि अगस्त सेकंड वीक से लेके और अक्टूबर मिड तक बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं जिनका पैकेज मोर देन 10-15 लाख होता है, तो वो अपनी प्रिपरेशन जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट करना है। मैं डिज़ाइन से हूँ, तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले बेसिक्स 4 सब्जेक्ट हैं: स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन एंड फटीग एंड फ्रैक्चर मैकेनिक्स। इन सब के चैप्टर 1 पढ़ के रखो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन, और क्योंकि कंपनी में से बेसिक्स पूछे जाते हैं, बेसिक्स पढ़ते जाओ। इसके अलावा जो जो तुमने मिनी प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट कराया है उसके बेसिक्स तैयार करो। थैंक यू भैया। हेलो गाइस, वेलकम टू मेका स्मिथ यूट्यूब चैनल एंड वेलकम अथीरा आल्सो। हाय अथीरा। Hi. So where did you get placed and what is the role there? Okay, so I got placed in one Indian MNC as well as a German MNC, and my role was design engineer in the German MNC and R&D engineer in the Indian MNC. Okay. So if you don't mind, what is the CTC? It is in between 8 to 12. As you are passing out this year, so how do you feel like how is the college life in NITK? Okay, so NIT के कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ। एक्चुअली कभी बोर नहीं होता है यहाँ, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ होते रहते हैं। ऑल्सो like our ring ceremony, which is very very unique. Yes, Actually, yes. it's a really nice function where you get rings from your faculties as a what do I say, indication of the bond, eternal bond between the institute and the student, the passing out student. And and we are the only campus with a private beach. That's Yes, one thing, that's very the unique nice. thing, yes. Yeah. So like generally students hesitate to get admission. Like students from mechanical engineer Mhm. usually gets hesitate to have admission in materials field. So what is your stance on this? Okay, so
जनरली लोगों को उतना जानकारी नहीं होता है मटेरियल्स के बारे में, यहाँ आने के बाद पता चलता है. सो मटेरियल्स में ऐसा लाइक यू केम इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई मीन ब्रांच डजंट मीन यू विल बी स्टिक टू दिस. You still have a lot of option. You can go for IT, you can go for softwares, I mean management, banking and a lot of things. And even in materials engineering itself लोगों को ये एक प्रीसम्पशन है कि सिर्फ स्टील्स में जाता है. नॉट, वो ऐसा नहीं है. बहुत सारे फील्ड्स ओपन है मटेरियल्स में, लाइक पॉलीमर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है. बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं. To like usually participate in dance. So along with studies, how do you manage the extracurricular activities? ओके, सो यहाँ का शेड्यूल इतना भी हेक्टिक नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. इवन फॉर एमटेक स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क रहते हैं, उनको भी काफ़ी टाइम मिलता है फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल. सो आप लाइक आपका टाइम आराम से आप बैलेंस कर सकते हो. दिन में आपको काम कर सकते हो, ऑल्सो रात को आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट रहते हैं. So any suggestions for upcoming juniors in materials? ओके, अगर मटेरियल्स का स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो मैं बताऊंगी कि आप मटेरियल्स लेने में हेजिटेट करने का ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. And like 99% of us are placed, that too in good companies with good packages. And when it comes to like joining NIT के, I would say like अगर आप NIT के आए तो जितना हो पा रहे हो उतना इन्वॉल्व करो यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं आपको एज अ पर्सन ग्रो करने को. Though I am mechanical engineer, but I am impressed by the description you have presented, and I will promote the materials department for MTech and BTech also. So thank you so much Athira for joining us, and best wishes for your future. थैंक यू सो मच एंड विश यू द सेम. Welcome. So भीम भाई, आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ? मेरा प्लेसमेंट एक्चुअली 2 में हुआ था, एक कोर और नॉन कोर में. तो मैं इनिशियली यहाँ जब आया तो मैं नॉन कोर में ही प्रेफर कर रहा था, तो आई चूज़ नॉन कोर. MNC बैंक में हुआ है. Okay. और क्या रोल है वहाँ पे? ऑफिसर का रोल है, बेसिकली PO. ओके. सो एक बात को एक क्वेश्चन पूछनी थी कि आप बीटेक मैकेनिकल से किए हो और यहाँ पे एमटेक मटेरियल्स में कर रहे हो, तो आपको क्या ये वर्थ इट लगा? बिल्कुल वर्थ इट था. एक्चुअली मैं बीटेक मैकेनिकल से किया हूँ और BA भी मैकेनिकल से किया हूँ, और मैकेनिकल में ही जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट मैकेनिकल इन NIT के. इट्स ओके, आई गॉट इन मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस भी बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है इस साल. ऑलमोस्ट 99% प्लेसमेंट इज देयर इन मटेरियल साइंस. और आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क है मटेरियल्स में, तो बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा या फिर टफ रहेगा मटेरियल्स, वो कैसा आप सोचते हो? नथिंग लाइक दैट. एक्चुअली मैकेनिकल से कंपेयर किया तो मटेरियल्स में बहुत ही अच्छा है, और प्रोजेक्ट भी बहुत ही अच्छा है. यू कैन डू इट ईजिली एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, एंड कैन फिनिश इट इन 3 to 4 months. मैकेनिकल वाले तो बहुत लोग, मेरा दोस्त है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कम्प्लीट इट, बट हमारा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है. सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आपका बीटेक और एमटेक ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज से हुआ है, तो आप क्या मतलब स्टडी ओरिएंटेड थे या फिर स्पोर्ट्स या और कोई हॉबीज? ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी ओरिएंटेड ही था. मैं ओवरऑल डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया. मेरा बीटेक भी अच्छा कॉलेज से था और स्कूलिंग भी अच्छा था. आई वॉज इन नवोदया फ्रॉम 6 to 10, तो वहाँ भी मैंने स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया. आई वॉज इन टू जूडो. मैं वहाँ नेशनल लेवल तक भी खेला हूँ, और यहाँ एमटेक आने के बाद उतना नहीं कर पाया, बिकॉज एमटेक इज़ लिटिल बिट हेक्टिक. एंड मटेरियल में था, इसलिए थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज NIT के में बहुत होता है, और PG कप होता है, दैट इज़ वंडरफुल. वी आर पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल, क्रिकेट था, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू विन द मैच, बट स्टिल ओके, वी आर इनटू कॉम्पिटिशन. अच्छा था. ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ गुड फॉर एवरीवन. चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी. थैंक यू. हेलो शंकर भैया, आपने बताइए कि आपकी प्लेसमेंट किस टाइप की कंपनी में हुआ और पैकेज किस तरह? मेरा प्लेसमेंट एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है, और पैकेज 10 to 15 के मिड में है. और रोल क्या मिला है आपका? रोल मेरा मैनेजर का रोल. ओके. और आप ये बताइए कि आप जब इसलिए जो 2 साल है, इन 2 साल में आपको क्या क्या हसल आपको झेलने को पड़ेगी? अगर एकेडमी पर देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था. सुबह 8 बजे से क्लास होती थी. उसके बाद आफ्टर 12 हम फ्री रहते थे, तो सुबह तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद पूरे टाइम फ्री थे तो अच्छा लगता था.
ना कोई टफ नहीं था। सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा एक्टिव हो गया क्योंकि 5 बजे तक क्लास करती थी और मेरे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे थे, तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल हुआ। लेकिन एकेडमिक्स वाइज तो इतना मेरे लिए कोई टफ नहीं था क्योंकि पहले से ही पढ़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बहुत कर चुकी थी, तो इतना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आया। लेकिन प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आया क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनीज आई थी बहुत सारी, उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था और प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज़्यादा था, तो प्लेसमेंट के लिए इतना मैं पढ़ नहीं पाया था। तो जब मैं सीरियस हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि कंपनीज थोड़ी कम हो गई, यानी कि डिज़ाइनिंग कंपनी आने लगी, तो थोड़ा सा लो भी फील होने लगा था। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी तो कंपनी आएगी, और इतना ऐसा हुआ कि मेरा 2 कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, उसमें से मैंने ऑटोमोबाइल का सेक्टर चूज किया। सो आप ये जो आपका लेट प्लेसमेंट हुआ, इस पे आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड? मोटिवेटेड जैसे कि अपने काम में इन्वॉल्व रहता था, जो प्रोजेक्ट था वो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, और फैमिलीज घर पे बात करता रहता था, तो घर वाले भी सपोर्टिव थे, तो इतना कोई दिक्कत खास बात नहीं थी। बोल रहे हैं कि आपकी 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुई थी, एक शायद R&D था और एक आपका मैनेजमेंट में था, टेक्नो मैनेजमेंट। फिर आपने टेक्नो मैनेजमेंट ही क्यों चुना? वो इसलिए उसमें 2 रीजन था। पहला जो कंपनी R&D वाली थी वो सर्विस को थी, सर्विस बेस्ड, और दूसरी जो कंपनी थी वो प्रोडक्ट बेस्ड थी, ऑटोमोबाइल, और मेरे को ऑटोमोबाइल में थोड़ा इंटरेस्ट भी था। मेरा प्रोजेक्ट भी मतलब सस्पेंशन पे है, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी था ऑटोमोबाइल में। और दूसरा कि जो जिसमें मैं प्लेसमेंट लिया हूँ वो लोकेशन मेरे घर के पास भी दे रही थी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल मुझे सबसे अच्छा डिसीजन लगा कि मैं ये सब मैनेजर वाला प्रोफाइल लेता हूँ ऑटोमोबाइल वाले से, इसलिए मैंने ऐसे चूज़ किया। डिसीजन आपका तो फिर अच्छा। थैंक यू फॉर योर टाइम।